Hello, hello students. Today we are going to study third chapter of history, religious synthesis. We all know that in our country there is diversity of languages and religions. Means in our country many languages and religions are there. And considering this feature, इसको ध्यान में रखते हुए the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. Indian Constitution ने सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है. सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. In medieval India, two attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. In medieval India, two attempts to bring about religious synthesis. Medieval India में भी इस बात को ध्यान में रखते हुए लाइफ वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स. लाइफ जो है वो इसी प्रिंसिपल्स पर आधारित थी. Among these efforts, Bhakti movement, Sikhism and Sufi sect have a significant place. Bhakti movement, Sikhism and Sufi sects were the different Bhakti marks. These different streams of thoughts arose in different parts of India. They emphasize harmony between the different sects and religion along with devotion to God. भगवान की भक्ति करने के अलग अलग मार्ग थे, उनको कहा गया था भक्ति मार्ग. We shall study them in this chapter. Initially, rituals and Brahmagyan were greatly emphasized in the Indian religious type. Rituals and Brahmagyan, these were the important part of Indian religious life. Many rituals are there. Rituals means chali ritiya parampara. In the medieval period, they gave way to Bhakti Marg. Medieval period से भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई. भक्ति मार्ग मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं भगवान की, उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग. Bhakti Marg did not give undue importance to hierarchy which further facilitated religious synthesis. भक्ति मार्ग में कोई हायरार्ची का उपयोग नहीं किया गया है. हायरार्ची मीन्स वंश परंपरागत, कोई भी भक्ति कर सकता था. In the different regions of India, we find different forms of the path of devotion. India के different parts में अलग अलग भक्ति के मार्ग अपनाए गए हैं according to the local situation there. The Bhakti movement used the common people's language instead of Sanskrit. भक्ति मार्ग में संस्कृत लैंग्वेज का यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सभी को समझ में नहीं आती थी. उनके लोकल लैंग्वेज का यूज किया गया है. लोकल लैंग्वेज सभी को समझ में आती थी. This helped the development of regional languages. और इसके वजह से रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ. जो एरिया में जो भाषाएं बोली जाती थी उनकी डेवलपमेंट हुई. We will see what is Bhakti Marg. It is believed that the Bhakti movement originated in South India. South India में भक्ति मार्ग originate हुआ. The Nainar and Alwar Bhakti movements emerged in this region. There were two types of Bhakti movements, Nainar and Alwar. The Nainar were the devotees of Shiva, while the Alwars were the devotees of Vishnu. अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नयनार जो थे वो शिवा के भक्त थे. और एक ग्रुप था भक्ति का जो दोनों को एक ही मानता था, शिवा और विष्णु as one. There were also attempt to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. शिवा और विष्णु को एक ही समझते थे, ऐसे लोगों का भी ग्रुप था. उसका नाम था हरिहर. हरिहर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा. हरिहर का जो मूर्ति है वो उसमें हाफ विष्णु का पार्ट है और हाफ शिवा का पार्ट है. People belonging to all social strata had participated in this Bhakti movement. भक्ति मूवमेंट में कोई भी समाज के कोई भी लोग उसमें शामिल हो सकते थे. They preached values like love of God. भक्ति मार्ग में क्या सिखाते थे? भगवान के प्रति प्रेम, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, मर्सी एटसेट्रा. लोगों के साथ अच्छे रहो, अच्छा बिहेव करो, यही उसमें समझाते थे. Ramanuja and other acharyas strengthened the base of Bhakti movement in South India. South India में रामानुजा और other acharyas उन्होंने भक्ति मार्ग को strengthen किया, मजबूत किया. They told people that God is for all. उन्होंने बताया कि भगवान सभी का है. God does not discriminate. God कोई भेद नहीं करता. The teachings of Ramanuja had a great impact in North India also. North India में भी रामानुजा का जो टीचिंग्स है उसका बहुत प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था. संत रामानंद strengthened the Bhakti movement in North India. नॉर्थ इंडिया में संत रामानंद ने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की.
Sant Kabir is a well-known sant in the Bhakti movement. Sant Kabir was famous sant in Bhakti movement. He did not attach any importance of places of pilgrimage, vratas or idols worship. उन्होंने कोई पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थस्थान या व्रताज या मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया. फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड. उनके लिए सच्चाई ही भगवान था, सत्य ही भगवान था उनके लिए. ही टॉट दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. उन्होंने बताया कि सभी जो लोग हैं वो इक्वल है. ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. He did not believe in any differences based on caste, sect and religion. उन्होंने कोई जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया. हिंदू मुस्लिम में यूनिटी उन्होंने शुरू की. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religions. Orthodox people means पुराने विचारों वाले लोगों का उन्होंने विरोध किया. In Bengal, चैतन्य महाप्रभु underlined the importance of Krishna Bhakti. चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति की शुरुआत की. ड्यू टू दिस टीचिंग्स पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड. उन्होंने भी कास्ट और क्रीड को नहीं माना. अंडर दिस इन्फ्लुएंस शंकर देवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम. शंकर देवा ने आसाम में भक्ति मूवमेंट स्प्रेड किया. ही वॉज द संत ऑफ आसाम. नरसिंह मेहता वाज ए रिनाउंड वैष्णव संत इन गुजरात. नरसिंह मेहता जो है वो गुजरात के संत थे. ही वॉज एन ऑर्डेंड डिवोटी ऑफ कृष्णा. वो कृष्णा के भक्त थे. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी. ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज. नरसिंह मेहता जो है उनको गुजराती लैंग्वेज का पहला कवि बोलते हैं. उन्होंने कविता गुजराती लैंग्वेज में शुरू की. संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन ऑफ कृष्णा. संत मीराबाई जो थी वो कृष्णा की भक्त थी. सी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. वो राजघराने से थी. सी रिनाउंड ऑल प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. संत मीराबाई के बारे में हम लोग जानते ही है. सी रिनाउंड ऑल प्लेजर्स ऑफ रॉयल फैमिली. उसने राजघराने का जो ऐशो आराम था वो सब छोड़ दिया और वो कृष्ण भक्ति में डूब गई. सी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती. उन्होंने वर्सेस मीन्स कविताएं की, पंक्तियां लिखी राजस्थानी में और गुजराती में. हर डिवोशनल वर्सेस गिव मैसेज ऑफ डिवोशन. उनकी जो कविताएं थी उनमें भक्ति का यूज किया था. इन टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी. भक्ति मार्ग को अपनाया था. संत सेना वाज एन इन्फ्लुएंस संत. संत रोहिदास वाज ए ग्रेट संत. He gave the message of equality and humanity. Surdas, a great poet of Hindi literature, composed the poetical work of Sursagar. सूरदास जो थे वो हिंदी लिटरेचर बनाते थे, हिंदी साहित्य लिखते थे और उनका जो पोएटिक वर्क है, कविताओं का संग्रह है, सूरसागर है. डिवोशन टू कृष्णा. कृष्ण भक्ति इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क. द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति composed by the Muslim Sant Rakshan are melodious. रामचरितमानस ऑफ संत तुलसीदास इज ए ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा. संत तुलसीदास ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, कॉम्पोजिशंस लिखे हैं रामा की भक्ति के लिए. इन कर्नाटका बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट. कर्नाटका में बसवेश्वर संत थे, उन्होंने लिंगायत स्ट्रीम अपनाए. एक रिलीजन है, ये सेक्ट है लिंगायत. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. उन्होंने कास्ट सिस्टम में जो भेदभाव करते थे उसको अपोज किया और लेबर को अच्छा दर्जा दिया. काया कावे कैलास इज हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलास. काया कावे कैलास इन कर्नाटक लैंग्वेज उसका मीनिंग है वर्क इज कैलास. कैलास मीन्स वर्शिप, पूजा. वर्क इज वर्शिप. कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही पूजा है. ही एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट. उन्होंने वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट किया. मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगैन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशंस. वुमेन और मेन दोनों रिलीजियस धार्मिक जो डिस्कशन रहते थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे. अनुभव मंतापा. अनुभव मंतापा एक हॉल था
लिटरेचर वहां पर डिस्कशन करते थे। श्री बसवेश्वर कन्वेड द टीचिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। बसवेश्वर ने लोगों के भाषा में प्रीच किया, लोगों को सिखाया, कन्नड़ा में। थ्रू द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर। वचना लिटरेचर उनका एक लिटरेचर था। हिज वर्क हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो। मराठी में भी उन्होंने कंपोज किया। ऑफ दिस कंपोजिशन परम रहस्य कंपोज बाय मनमथ स्वामी इज वेरी वेल नोन। परम रहस्य एक कंपोजिशन था, वो मनमथ स्वामी ने लिखा था। ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पाम, पुरंदरदास एंड अदर्स। ये जो है ये कर्नाटका के फेमस संत थे। दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, महानुभाव पंथ। फर्स्ट वी हैव सीन भक्ति मूवमेंट, देन महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ एक रिलीजन है, सेक्ट है। इन द 13th century चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभाव पंथ इन महाराष्ट्र। चक्रधर स्वामी ने 13th century में इसकी स्थापना की। दिस सेक्ट प्रीच डिवोशन टू कृष्णा। इसमें कृष्ण भक्ति को अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है, कृष्णा की भक्ति है। श्री गोविंद प्रभु वाज द गुरु ऑफ चक्रधर। गोविंद प्रभु जो है वो चक्रधर स्वामी के गुरु थे। द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। ही सपोर्टेड इक्वेलिटी। He traveled to all part of Maharashtra preaching in Marathi. The followers of Chakradhar included men and women. चक्रधर स्वामी के जो फॉलोअर थे वो मेन और वुमेन दोनों थे और सभी कास्ट और सभी धर्म के थे। ही सपोर्टेड इक्वेलिटी। उन्होंने इक्वेलिटी को सपोर्ट किया। ही ट्रेवल्ड। उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारा ट्रैवल किया और मराठी में प्रीच किया लोगों को। प्रीच किया मीन्स सिखाया। He preferred मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। संस्कृत के बजाय उन्होंने मराठी का यूज किया। This led to the development of Marathi language. Many works were composed in Marathi. Many works were composed in Marathi. This sect only spread Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra. Riddhipur in Vidarbha is an important place for people of this sect. Riddhipur is the important place for Mahanubhav sect. This sect had reached up to far away regions like the Punjab and Afghanistan. ये महानुभाव पंथ जो है वो बहुत जगह पर फैल गया है, जैसे पंजाब और अफगानिस्तान में। स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।